So good morning, all of you, and welcome in today's session. Today we are going to discuss IP addressing. I'm talking about IP version 4 right now because IP version 6 is a different topic altogether in our syllabus that we'll take at the end of this course. Okay, so IPv4 addressing, there are some very, very important points when we discuss about IP addressing, IPv4 addressing. The very first point is it is a 32-bit address. Okay. बाइनरी और डेसिमल कौन से फॉर्मेट में होता है ये? सर डेसिमल में 2-bit 01 is what? binary. Right. So it's a 32-bit address in binary format. Then IP version 4 address is divided into 4 octets. Yes, sir. Okay. And these octets are separated by dot. Dot. Okay. Range of each octet can vary from 0 to 255. Yes. IP address is a layer. IP is a layer 3 protocol, right? So it works on layer 3. Used to identify a device in a network or an internetwork. IP addresses are classified in some classes. Class A, Class B, Class C, Class D, and Class E. 5 classes. These addresses are either private, public, or reserved. We'll talk about all of these points. So let's begin. तो देखिए 32 बिट का एड्रेस है आईपी वर्जन 4 एड्रेस. आपने कोई भी आईपी वर्जन 4 एड्रेस देखा होगा. मोस्ट कॉमनली यूज्ड आईपी एड्रेस इज लाइक 192.168.1.1 व्हाटएवर. 192 सीरीज से स्टार्ट होने वाला. आप अपने घर पे अपने कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हो
तो आपने देखा होगा नेटवर्क से या इंटरनेट से कनेक्ट करते हो तो आपको ये सीरीज का आईपी एड्रेस मिलता है ना. सो इट्स एन आईपी एड्रेस. इट इज डिवाइडेड इनटू 4 ऑक्टेट्स. आपको दिख रहा है 4 ऑक्टेट है. ऑक्टेट नंबर 1, then dot, then 2, then dot, 3, and then 4th octet. Now these IP addresses or these octets actually can the range of this octet can vary from 0 to 255. Okay, how? कैसे? देखो मैंने आपको क्या बोला कि ये जो ऑक्टेट्स है ये ऑक्टेट्स एक ऑक्टेट में 8 बिट होते हैं. टोटल 32 बिट है. तो एवरी ऑक्टेट इज ऑफ 8 बिट्स. सो आई एम writing bits in ones. 1 1 Okay? 1 1 8. No, whatever. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8. Okay, so these are 32 bits. Okay, now if value of all these bits is 0, then what will be the end result? 0. 0.0.0.0, right? Yes, sir. Because the value of this bit is 1, the second bit is 2, third is 4, 8, 16, 32, 64, and the last bit's value is 128. तो अगर ये सारे ही बिट 0 हैं तो रिजल्ट क्या आएगा? उस ऑक्टेट का 0. जो बिट 1 होगी वो बिट का रिजल्ट क्या आएगा? अगर ये बिट 1 हुई तो ये बिट का वैल्यू ऐड हो जाएगा 1 plus 2 plus 4 plus 8 16 32 64 128. तो ये सबको आप ऐड करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा? 255 255 255. so this is the range. ओके, 0 to 255. हाँ, बीच में कुछ भी हो सकता है ऐसा कॉम्बिनेशन हो, है ना. तो इस सिचुएशन में क्या रिजल्ट आएगा? 10 10 10 10. व्हाट विल बी द रिजल्ट? Add the values where you have ones. Okay, तो इस बिट का वैल्यू है 2 plus 8 plus 32 plus 128. कितना हुआ? कितना हुआ? 2 plus 8 10 10 plus 32 42 plus 128. कितना हुआ? 170. 170, whatever. Okay, so this is how you actually represent the address. तो अगर मैं लिखता हूँ 192.168.1.1 तो इसको कैसे लिखेंगे बाइनरी में? - 168 कैसे लिखोगे? Uh, 128 plus 32. How much? Plus 8. 16. एक दो तीन चार पाँच छः. ओके, प्लस 8 ऐसे ही लिखेंगे. फिर ऐसा. So 192.168.1.1 will be written like this. ठीक ही होगा, I hope. Whatever. So this is how you can represent the IP address in binary format using zeros and ones, whatever. So essentially, देखो एक चीज याद रखना कि IP addresses जो है वो IP address चाहे कोई सा भी IP address आपके सामने हो उसको आप कन्वर्ट करना बिट्स में आपको आना चाहिए. Binary to decimal, decimal to binary, hexadecimal to binary, hexadecimal to decimal, decimal to hexadecimal, binary to hexadecimal. ये कन्वर्जन आपके बुक में ही शायद दे रखा है. मैं ये नहीं सीखूंगा. ठीक है, क्यों नहीं सिखाऊंगा? क्योंकि यू गाइज आर मैच्योर इनफ. आप लोग ऑलरेडी ये बाइनरी डेसिमल चीजें पढ़ चुके होंगे अपने कोर्सेज में या अपने जब भी आपने इंजीनियरिंग किया होगा तब पढ़े होंगे. सो इट्स क्वाइट इजी स्टफ. Okay, so I won't go deep into this.
Now it's a layer 3 address. Okay, layer 3 is which layer? Network layer of OSI I am talking about. Okay, जब भी मैं कहूँ layer 1, layer 2, layer 3, layer 4, तो मैं I'm not talking about TCP/IP model. Okay, I'm talking about OSI reference model all the time. बिकॉज OSI रेफरेंस मॉडल और TCP/IP रेफरेंस मॉडल में फर्क मैंने आपको बताया था कि जब आपको सीखना है ना वाकई में कि कैसे ये लेयर्स काम करती है, तो उसके लिए OSI रेफरेंस मॉडल ही है. That is the model actually you can go through and learn that what exactly is happening. TCP/IP model is a short, small, crisp model which actually जिसमें कई सारी OSI रेफरेंस मॉडल की कई लेयर्स एक लेयर में एम्बेड है. तो एम्बेडेड होने की वजह से आप उसके काम जो है OSI में समझ लो कि किस लेयर का क्या काम है और उसको फिर रिलेट कर लो कि अच्छा TCP/IP का ये लेयर ये काम कर रही होगी. लेकिन समझने और सीखने के लिए OSI मॉडल इज द बेस्ट मॉडल. So it is a layer 3 protocol IP used to identify a device. एक नेटवर्क एक या इंटरनेटवर्क, नेटवर्क बोलूं तो सेम नेटवर्क. ओके, सेम नेटवर्क मींस जैसे 10 डॉट समथिंग समथिंग आईपी एड्रेस दिया है सभी लोगों को, दैट इज द सेम नेटवर्क. अगर किसी को 20 नेटवर्क का आईपी दे दिया तो दैट्स अ डिफरेंट नेटवर्क. ओके, सो उस पे भी हम बात करेंगे, सेम नेटवर्क डिफरेंट नेटवर्क को कैसे पहचानेंगे. सो जस्ट रिमेंबर दैट इफ वी हैव single network or multiple networks, then how we will identify a particular end host or a device. So to identify a device, IP address is being used. Okay, IP addresses are classified in 5 classes: A, B, C, D, and E. Class A, Class B, Class C, D और E. अभी ये क्लासेस में कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे वो मैं आपको बताता हूँ. देखिए, क्लास ए, अब जब ये IP वर्जन 4 एड्रेस बनाए ना, वो टाइम पे उन्होंने क्या किया, बनाने वाली जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जैसे आयना, that is one of the organizations which is actually managing IP version 4. ठीक है, जो IP वर्जन 4 का पूरा मैनेजमेंट करती है, किस कंपनी को IP एड्रेस असाइन करना है, किसको नहीं करना है, वो सारा मैनेजमेंट का काम आया है. तो जब ये IP एड्रेसेस बनाए तो बोले कि यार ये IP एड्रेसेस ना बहुत हैं. मतलब कितने हैं? बहुत सारे भाई. 32 बिट का एड्रेस है, 2 to the power 32. इतना एड्रेसेस मिल जाएंगे. क्लासेस में बांट दिया है. क्लास में क्या है भी मैं आपको बताता हूँ. तो ये IP एड्रेसेस वो टाइम पे सोचा गया कि बहुत सारे IP है, ये कभी खत्म नहीं होंगे, इतने IP. तो फिर क्या हुआ कि के लिए some rules they actually came up with, and some solutions, some different kind of offerings they came up with. तो क्या क्या ऑफरिंग थी, उनमें से एक था कि क्लासेस में बांट दो. भाई किसी कंपनी को छोटा नेटवर्क बनाना है, किसी को मिड लेवल बनाना है, किसी को बहुत बड़ा नेटवर्क बनाना है, तो उसी हिसाब से ये क्लासेस में बांट दिए गए. तो पहली जो थी क्लास वो थी, बोले क्लास ए. क्लास ए में उन्होंने कहा कि जो पहला ऑक्टेट है, ये 4 ऑक्टेट का एड्रेस है, तो बोला पहला ऑक्टेट रिप्रेजेंट्स नेटवर्क एंड रेस्ट ऑफ द 3 ऑक्टेट्स रिप्रेजेंट होस्ट. क्लास बी में जो पहला ऑक्टेट है वो नेटवर्क है, दूसरा भी नेटवर्क को रिप्रेजेंट करता है, नेटवर्क एड्रेस को, और बाकी 2 होस्ट एड्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं उस नेटवर्क में. भाई आपके घर का एड्रेस होता है ना, उस एड्रेस में आप क्या देते हो कि भाई ये कॉलोनी में या ये सेक्टर में ये मकान नंबर है ना. तो नेटवर्क जो है वो तो आपका कॉलोनी, और and in that sector your house number is like host address. Okay, that this particular host is represented by these 2 octets in class B and these 3 octets in class A. Then comes class C. क्लास सी में पहले 3 ऑक्टेट्स जो है वो नेटवर्क के लिए है और लास्ट ऑक्टेट जो है वो होस्ट के लिए है. तो क्लास ए, बी और सी में ये डिफाइन किया गया. क्लास डी और क्लास ई जो है उसमें बोला कि नहीं नहीं, ये क्लास जो है, दिस क्लास इज रिजर्व्ड फॉर मल्टीकास्ट. क्लास डी इज रिजर्व्ड फॉर मल्टीकास्ट ट्रैफिक.
मल्टीकास्ट समझते हो ना, 1 to many। भाई 1 to 1 नहीं, मेरे को 1 इस्तेमाल करेंगे मल्टीकास्ट करने के लिए ट्रैफिक को। सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। Just give me a second. And class E is actually reserved for research and development. Okay, so these are the 5 classes, but you can only use class A, B, and C to define IP address on your end host or any of the device like routers. Okay, so you have only 3 classes left. The rest of the 2 classes are for multicast and research and development. अब देखिए जो क्लास A है उसमें एक नेटवर्क के लिए ऑक्टेट है, मतलब 8 बिट्स आर फॉर नेटवर्क एंड रिमेनिंग 24 बिट्स आर फॉर होस्ट। Similarly, in class B, there are 16 bits for network and 16 bits for host. Class C has 24 bits for network and 8 bits for host. What does this mean? इससे क्या समझे आप? इससे ये समझे कि क्लास A में नेटवर्क्स जो है वो कम बना सकते हैं, लेकिन होस्ट बहुत सारे लगा सकते हैं। जितने ज्यादा बिट है जिस चीज के लिए, वो उतना ज्यादा लग सकते हैं, राइट, उतने ज्यादा बन सकते हैं। तो होस्ट एड्रेस के लिए जब 24 बिट है तो इसका मतलब 2 to the power 24 होस्ट लग सकते हैं ये नेटवर्क में, एक क्लास ए के नेटवर्क में। क्लास बी के नेटवर्क में 2 to the power 16 होस्ट लग सकते हैं। क्लास सी में 2 to the power 8 होस्ट लग सकते हैं एक नेटवर्क में। तो अगर आपकी कंपनी में छोटे छोटे नेटवर्क बहुत ज्यादा चाहिए, लेकिन हर नेटवर्क में थोड़े थोड़े होस्ट लगाने हैं, तो क्लास सी का नेटवर्क लीजिए। अगर आपके कंपनी में एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जहां पर मान लो 10,000 यूजर या 20,000 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, तो आप उन सबको एक ही नेटवर्क में रखना चाहते हो, तो फिर क्लास ए का नेटवर्क लीजिए जहां पर आपको होस्ट बहुत सारे मिल जाएंगे। तो समझे आप, जब कौन से क्लास का एड्रेस यूज करोगे ये किस चीज पे डिपेंड करता है। चूजिंग अ क्लास in IP depends on how many networks or how many hosts you need in your network, right? So based on that requirement, you will choose that which class address we should assign or provision. Okay, so let's take an example. Okay, चलो एग्जाम्पल से पहले रेंज भी बता देते हैं इनकी। अब मैंने जैसे एक आईपी एड्रेस लिखा 192.168.1.1, this IP address belongs to which class? Class A, B, C, D or E? C. C? Yes sir. कैसे पता? सर इनकी IP रेंज डिफाइन कर रखी है पहले से, जो आप जानते हो, yes. है ना, तो इस वजह से आपको पता। वेरी गुड, पता होना भी चाहिए। अभी देखो ये रेंज कैसे निकली। ये 192 जो है ये क्लास सी में आता है, ये एड्रेस, ये कैसे निकला ये रेंज। अभी वो रेंज कैसे निकली वो देखते हैं। सो व्हाट हैपेंड वाज, क्लास ए का रेंज निकालने के लिए, क्लास ए रेंज के लिए क्या किया गया, एक फॉर्मूला डाला गया। फॉर्मूला मतलब ये कहा गया कि जो आपका फर्स्ट ऑक्टेट है, जो ये फर्स्ट ऑक्टेट है क्लास ए में, जो कि नेटवर्क को डिफाइन कर रहा है, इस ऑक्टेट की कुछ बिट्स को फिक्स कर दो। इस ऑक्टेट की कुछ बिट्स को फिक्स कर दो। तो बोले कौन सी बिट को फिक्स करें, तो बोले इसकी पहली बिट को फिक्स कर दो। कितनी बिट होती है भाई, ये होती है ना 8 बिट्स नेटवर्क में। तो बोले पहली बिट जो है उसको फिक्स कर दो 0, ये 0 ही रहेगी। बाकी जो 7 बिट्स हैं वो आप वेरी कर सकते हो, उनको आप 0 से लेके 1 तक चला सकते हो, वही इसका रेंज है। लास्ट बिट इज फिक्स्ड 0, रेस्ट रिमेनिंग 7 बिट्स यू कैन चेंज फ्रॉम 0 to 1। सो अगर ये बाकी के बिट्स मैंने कर दिए 0, तो रिजल्ट क्या आएगा, सारे बिट्स अभी क्या हो गए 0। ऑल 8 बिट्स आर 0, सो रिजल्ट विल बी 0। नाउ ये बिट तो 0 ही रहेगी, बाकी सारे बिट्स को 1 कर दो, then what will be the result?
127. Is this clear or not? क्लास ए का रेंज पीछे आया, क्लास ए का रेंज आने के पीछे फॉर्मूला क्या है? द लेफ्ट मोस्ट बिट will be fixed to 0 and the remaining 7 bits are variable, so you can use it, use these 7 bits. तो इनको 0 कम से कम क्या कर सकते हैं? Minimum is like we can make all of them 0, so the result will be 0. Maximum what we can do is we can make all of them 1, and if we make them all 1, the result will be 127. Yes. Is it clear? Yes. क्लास बी रेंज का क्या फॉर्मूला था कि पहले 2 बिट जो है उनको फिक्स कर दो, फर्स्ट 2 बिट्स फिक्स कर दो, और रिमेनिंग बिट्स जो है उनको आप, जस्ट अ मोमेंट, आई एम गेटिंग अ कॉल. Okay, sorry about the break. So class B range, what will be the range? आप लोगों ने होगा 128. These 2 bits are fixed. Make remaining bits as 1. What will be the result? 191. Hey guys, correct me if I am wrong somewhere, okay? Class C range. क्लास सी रेंज का फॉर्मूला क्या है? क्लास सी रेंज का फॉर्मूला है कि फर्स्ट 3 बिट्स को फिक्स कर दो, 110, और रिमेनिंग बिट्स को वेरी कर दो. See, you are not correcting me. Okay, class C range is from 1922 to 223. नहीं, क्लास डी. क्लास डी का फॉर्मूला क्या है? फर्स्ट 4 bits, fix them like this. The result will be 2 to 4. 239. Class E. Fix them like this. 4 bits again, but this time it's different from class D. In class D, 3 bits were 1 and the last one was 0. The fixed bits I'm talking about. And in class E, all 4 bits are 1s. So the result will be 240. All bits 255. This is the range for class A, B, C, D, and E. Any doubts in this? Any doubt? So I asked you a question that 192.168.1.1 address belongs to which class? And Chatrapal said class C. Why? Because 192 falls under which class? Class C range. Okay. So अभी मैं कोई भी एक IP दूंगा तो you will be able to tell me that this IP belongs to which class, right? So let me take an example, 150.1.1.1. This IP belongs to which class? A class. Come on, man. Class B. It's class B, 150. Class B range में आ रहा है ना? 100. Okay. Yes, sir. Yes. 0.0.1. This IP Yes, belongs sir. to which class? A. Class A. A, very good. Class A. 100.1.10.1. This IP C. belongs to C. Class B. C. 1.1.1.1. Which class? Class D. Class D. D. Class C. D. It's a multicast. D. Class D. 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 Very good.
तो ये जो 224 है जो मैंने एड्रेस लिखा, क्या ये अपने कंप्यूटर पे आप लगा सकते हो या एंड होस्ट पे लगा सकते हो? नो सर। यस और नो? श्योर? लगा के देख लो। ईथरनेट प्रॉपर्टीज, टीसीपी आईपी प्रॉपर्टीज, इधर लगा के देख लो। इधर मैंने लगाया 224, तो ये क्या कहता है? 224 is not a valid entry. Please specify a value between 1 and 223. So 224 we cannot assign IP beyond 223. Okay. So multicast या R&D वाला जो range है 240 वो नहीं दे सकते. Only class A, B and C you can use to assign IP addresses on your end host. Is this clear? Okay. अभी ये मल्टीकास्टिंग के आईपी कैसे असाइन होते हैं ना, ये अपने सीसीएनपी में है. They are not in CCNA syllabus. Now these are the classes. Classes आप समझ गए, रेंज आप समझ गए. अभी देखो हम समझते हैं एक आईपी एड्रेस के जो नेटवर्क और होस्ट पोर्शन है उसको. जब मैंने आपको इधर लिखा, when I gave you this IP address 150.1.1.1, it's an IP address, yes or no? यस सर. Yes, it's an IP address. It's an IP address of a device, right? I can give this IP to a device, right? So this IP address belongs to which network? This is the question. This IP address, भाई मेरे घर का नंबर जो है ना वो 68/210 है. 68 is the sector and 210 is the house number. So when I am writing this outside my house 68/210, तो किसी ने पूछा कि अरे ये कौन से सेक्टर में है भाई? Sector means network and house number is like host address. Okay, so if this is a class B address 150.111, what does that mean? That first 2 octets are for network and last 2 octets are for होस्ट. so can you tell me that 150.1.1.1 belongs to which network? This IP belongs to which network? बी. Network 68/210 house number belongs to which sector? Belongs to which sector? 68 सेक्टर. 68. यस सर. Similarly, 150.1.1.1 IP belongs to which network? 150.1 नेटवर्क के तो 2 ही ऑक्टेट है ना, यस सर. 2 ऑक्टेट लिख दिए 150.1. ओके. इसको क्या कर दूं मैं? 0 कर दूं. जैसे 0. 68/210 को मैंने पूछा, I asked you that this address belongs to which sector, then you simply did 68/0. यस You सर. did or not? 68 sector. Okay. Similarly, when I'm asking you that IP address belongs to which network, so the network is like, what you will do, you will first check that this IP belongs to which class, और वो class के अंदर how many octets are for network. Just keep them and make the host bits as 0. होस्ट बिट्स को 0 कर दिया ना इधर, जैसे मकान नंबर को, जैसे हाउस नंबर को हमने 210 के बजाय 0 कर दिया, एंड वी गॉट द सेक्टर नंबर. सिमिलरली when we do host portion bits 0, then we'll get the network address. Is this clear or not? यस सर. Everyone, is this clear? Okay, so I'm writing it down. When all host bits are 0, the address is called network address. And when all host bits are 1,
the address is called broadcast. broadcast address. Okay, जब होस्ट पोर्शन की सभी बिट्स को 0 कर दूं तो जो एड्रेस निकल के आएगा उसको हम बोलते हैं नेटवर्क एड्रेस, और जब होस्ट पोर्शन की सभी बिट्स को मैं 1 कर दूं तो जो एड्रेस निकल के आएगा उसको क्या बोलेंगे? ब्रॉडकास्ट एड्रेस। तो होस्ट पोर्शन की सभी बिट्स को 0 कर दूं, इसका मतलब 150.1.1.1 जो आईपी है, इसमें होस्ट पोर्शन कौन सा है भाई? इसमें होस्ट पोर्शन ये है Yes, लास्ट। sir. इनकी बिट्स को मैंने क्या कर दिया? इधर 0 कर दिया, तो मेरे सामने ये जो एड्रेस निकल के आया, दिस एड्रेस इज नेटवर्क एड्रेस। तो आपको ये सवाल पूछा जाएगा इंटरव्यू में कि भाई ये आईपी बिलोंग्स टू विच नेटवर्क, सो यू सिंपली हैव टू मेक द होस्ट पोर्शन बिट्स एज 0 एंड यू कैन टेल दिस एड्रेस बिलोंग्स टू 150.1.0.0 network. Similarly, if I am asking you that 100.0.0.1 IP belongs to which network? Tell me. 100.0.0.1. चैट में डालो। Question number 2, 100.0.0.0. Sorry, 100.0.0.1. इसका नेटवर्क एड्रेस क्या होगा? 100.0.0.0. वेरी गुड। 100.0.0.0 क्लास ए का है। क्लास ए में फर्स्ट ऑक्टेट इज फॉर नेटवर्क, रेस्ट 3 ऑक्टेट्स आर फॉर होस्ट। तो होस्ट ऑक्टेट सारे के सारे 0 कर दिए तो नेटवर्क एड्रेस निकल के आ गया मेरे सामने। वेरी गुड। नंबर 3, इसका बताओ 200.1.10.1। दिस आईपी बिलोंग्स टू विच नेटवर्क? फिर देख लो, चेक इट अगेन, फिर से देखो। Shiva, you are in a hurry, I guess. It's 200.1.10, not 0. Oh, sorry, 1. Chetna, why 201? It is starting from 200. Okay, it's just a typo, then it's fine. So 200 dot, it's a class C address, right? And in class C में क्या होता है? क्लास सी में पहले 3 नेटवर्क्स के लिए है ऑक्टेट्स और लास्ट ऑक्टेट इज फॉर होस्ट। तो लास्ट ऑक्टेट को 0 कर दो। This is the network address 200.1.10.0. So most of you are correct. Okay, last वाला 0 जो है होस्ट वाला वो भी लगाना चाहिए। We have to write all 4 octates, okay? Not just like, okay, this is the network address. No. Put 0 here in the host portion. Complete the 32 bits format. Okay. Next. Okay, 224 is multicast. So anyways, so now I think you got it. Let me ask one more question. 50.50.50.50. ये आईपी कौन से नेटवर्क को बिलोंग करता है? दिस आईपी बिलोंग्स टू विच नेटवर्क? नेटवर्क एड्रेस, not the class. Class A. What is the network address? Very good. Make a write it 50.0.0.0. Okay, not just 50. 50.0.0.0. All 4 octates. Okay, we have to write. Very good. So you guys got it. This is awesome. अब आप आईपी एड्रेस पहचान लेंगे, ठीक है? अब देखो दूसरा जो मैंने लाइन लिखा है, द सेकंड लाइन सेज व्हेन ऑल होस्ट बिट्स आर 1 द एड्रेस इज कॉल्ड ब्रॉडकास्ट एड्रेस। जब होस्ट पोर्शन के सभी बिट्स को मैं 1 कर दूं तो जो एड्रेस निकल के आएगा वो ब्रॉडकास्ट एड्रेस होगा। एंड व्हाट इज दैट? लेट्स से
कि मुझे 150.1.0.0 नेटवर्क में, मुझे ये वाले नेटवर्क में सभी जितने भी लोग हैं मेरे कंपनी में, सबका आईपी एड्रेस 150.1 से स्टार्ट हो रहा है, मुझे उन सबको एक मैसेज भेजना, हेलो गुड मॉर्निंग, ओके, आई हैव ब्रॉडकास्ट समथिंग इन दिस नेटवर्क, व्हिच एड्रेस आई यूज, व्हाट इज द ब्रॉडकास्ट एड्रेस फॉर दिस नेटवर्क? 152.1.255.255. वेरी गुड, वेरी गुड. सो व्हाट यू डिड वाज, आपने होस्ट पोर्शन के सभी बिट्स को क्या कर दिया, 1 कर दिया. सो व्हेन यू विल मेक all bits 1 in the host portion, then what result you will get? 150.1. now host portion comes. host portion का सभी बिट्स को 1 कर दिया, तो सभी बिट्स को 1 करेंगे तो रेंज कहां जाता है? 255 तक. all bits are 1 in host portion. So this is the address and this is the broadcast address for this network. जो ऊपर दे रखा है, इस नेटवर्क का ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या है? दिस एड्रेस 150.1.255.255. होस्ट पोर्शन का सभी बिट्स को 1 कर दो एंड दैट एड्रेस इज ब्रॉडकास्ट एड्रेस. ये एड्रेस नेटवर्क वाला और ब्रॉडकास्ट एड्रेस मैं किसी भी डिवाइस को असाइन नहीं कर सकता. नेटवर्क एंड ब्रॉडकास्ट एड्रेसेस cannot be assigned to any host. किसी होस्ट को ये आईपी असाइन नहीं कर सकते. क्या 68/0 किसी मकान को, किसी हाउस को एड्रेस दे सकता हूं क्या? No, sir. It starts from 1, right? So similarly, नेटवर्क एड्रेस किसी होस्ट को असाइन नहीं हो सकता और ब्रॉडकास्ट एड्रेस भी किसी होस्ट को असाइन नहीं किया जा सकता. ध्यान रखना. तो वैलिड आईपी जो है वो कहां से शुरू होगा? 150.1.0.1 से. ठीक है ना? कितने हैं, कितने टोटल होस्ट लग सकते हैं क्लास सी में? कितने होस्ट लग सकते हैं? 150.1. अच्छा, सी में 192. कितना होस्ट लग सकते हैं एक नेटवर्क में, क्लास सी के नेटवर्क में? होस्ट पोर्शन में कितना बिट है? 8. सो 2 to the power 254. 2 to the power 8 equals to how many? 256. Yes, sir. 256 आईपी लग सकते हैं? नहीं. एक सर नेटवर्क -2 आपको हमेशा करना पड़ेगा. व्हाट इज दिस -2? -2 is one is network address and one is broadcast address. These two cannot be assigned to any host. So the valid IP addresses you will get in class C to assign hosts is 254. Is this clear or not? Yes, sir. क्लास बी में कितना होस्ट लग सकते हैं? 2 to the power, होस्ट पोर्शन में कितना बिट्स है? 16. 2 to the power 16 -2. So जो भी आएगा, these many hosts can be connected in a class B network. क्लास सी में 2 to the power 24 -2. So ये -2 हम किस लिए कर रहे हैं? एक एड्रेस नेटवर्क वाला और एक एड्रेस ब्रॉडकास्ट वाला. ये नहीं असाइन कर सकते, पर इनके बीच का जो पूरा रेंज है वो असाइन किया जा सकता है. इज दिस क्लियर और नॉट? यस और नो? Yes, sir. मेगा, इज इट क्लियर? थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है इसमें. हाँ, ये बताओ कैसे- बताओ. ये आप हाँ, ये जो क्लास सी में आपने किया 2 to the power 8 -2, वो कैसे किया -2 का? देखो ऐसे किया कि क्लास सी के अंदर, क्लास सी में कितना बिट्स है होस्ट पोर्शन के लिए? हाउ मेनी बिट्स वी हैव फॉर होस्ट इन क्लास सी? 1 octet means 8 bits, है ना? हाँ. होस्ट पोर्शन में 8 बिट्स है, तो कितना होस्ट मैक्सिमम हम लगा सकते हैं क्लास सी के नेटवर्क में? 2 to the power 8, 2 to the power 8. हाँ. which comes as 256. But valid IP
सिर्फ 254 लगा सकते हैं, 2 IP कम कर दिया हमने, -2 कर दिया. अच्छा Why it is ओके -2? Because these two addresses we cannot use. Network address or broadcast address, these addresses cannot be used on any device. Let me give you an example. इधर गए हम, मैं एक IP एड्रेस दिया 150.1.0.0. ओके, ये IP मैं दिया और मैंने किया ओके. सी व्हाट इट इज सेइंग. ये नेटवर्क एड्रेस है ना, हाँ जी ये देखो 150 डॉट, लेट मी क्लियर दिस अप अ लिटिल. 150.1.0.0 नेटवर्क एड्रेस. हाँ ओके, तो नेटवर्क एड्रेस देते ही ये क्या बोलता है, द कॉम्बिनेशन ऑफ आईपी एड्रेस एंड सबनेट मास्क इन इनवैलिड, ऑल ऑफ द बिट्स इन द होस्ट एड्रेस पोर्शन ऑफ द आईपी एड्रेस आर सेट टू 0. होस्ट पोर्शन के सारे बिट्स 0 हैं. प्लीज एंटर अ वैलिड कॉम्बिनेशन ऑफ आईपी एड्रेस एंड सबनेट मास्क. सबनेट मास्क छोड़ दो अभी, वो तो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे. सो आईपी एड्रेस जो है उसके होस्ट बिट्स सारे 0 है, इसलिए दिस इज नॉट अ वैलिड एड्रेस. ओके, okay. And second address is what? Broadcast address 255. ब्रॉडकास्ट हाँ इसको भी मैं करता हूं तो देखो एक मैसेज आता है. क्या मैसेज आया? ऑल ऑफ द बिट्स इन द होस्ट एड्रेस पोर्शन ऑफ द आईपी एड्रेस आर सेट टू 1. सारे होस्ट पोर्शन के बिट्स को क्या कर दिया हमने? 1 कर दिया, सेट. तो इट्स नॉट अ वैलिड कॉम्बिनेशन. अगेन यू कैन नॉट असाइन ब्रॉडकास्ट एड्रेस. हाँ, आप इधर 254 कर दीजिए, ये ले लेगा. ओके करते ही ले लिया. 254 is a valid address, but 255 is broadcast address. Okay? होस्ट पोर्शन के सारे बिट्स जो है वो दोनों ऑक्टेट में 1 कर दिए. तो इसलिए जब हम लोग ये निकालते हैं कि कौन से नेटवर्क में, कौन से क्लास के नेटवर्क में कितना होस्ट लग सकते हैं, तो द फॉर्मूला इज, जो होस्ट पोर्शन का बिट्स है, वो होस्ट पोर्शन का बिट्स जो है वो 2 टू द पावर उतना कर दीजिए. लाइक क्लास ए में 2 टू द पावर 24 -2, क्लास बी में 2 टू द पावर 16 -2, and class C में 2 to the power 8 minus. 8 minus 2 Is it clear now? yes sir Very good. Now यहां पर 3 ऑप्शंस आ गए. The first option is network address. The second is broadcast address, and the third one is फर्स्ट वैलिड आईपी. है ना. ये 3 आ गए. वैलिड आईपी जो होस्ट को दे सकते हैं, जो भी आईपी होस्ट को दिया उसका नेटवर्क एड्रेस एक होगा जो हम असाइन नहीं कर सकते किसी होस्ट को, और एक उस नेटवर्क के अंदर अगर उसको ब्रॉडकास्ट करना, सभी को मैसेज भेजना है, तो उसके लिए एक ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है. ये लास्ट एड्रेस होता है, ये फर्स्ट एड्रेस होता है. ये आप समझ ही गए होंगे कि नेटवर्क एड्रेस इज द वेरी फर्स्ट एड्रेस ऑफ द नेटवर्क, 150.1.0.0. ठीक है, तो होस्ट पोर्शन का सारा बिट 0 कर दिया, तो दिस इज द फर्स्ट एड्रेस. एंड ब्रॉडकास्ट जब होस्ट पोर्शन की रेंज को हमने मैक्सिमम कर दिया 255, सारे होस्ट बिट्स को 1 कर दिया, तो दिस इज द मैक्सिमम, दिस इज द मिनिमम. बोथ आर नॉट वैलिड आईपीज. वैलिड आईपीज आर 1 अबव मिनिमम एंड 1 बिलो मैक्सिमम. मिनिमम से एक ऊपर चलोगे तो वैलिड आईपी चालू हो जाएगा, और मैक्सिमम से एक नीचे तक दोगे तो वैलिड आईपी रहेगा. इज दिस क्लियर? Now I'll give you some questions. Okay, let's do an exercise quickly. मेरे पास में एक आईपी एड्रेस है 10.1.1.1. आपको क्या निकालना है? आपको ये बताना है कि इज इट अ नेटवर्क एड्रेस और अ ब्रॉडकास्ट एड्रेस और अ वैलिड आईपी. I'll write down few. Okay, so this is question number 1. क्वेश्चन नंबर आप चैट में डालते रहिए अपने आंसर्स. वैलिड आईपी है या फिर
नेटवर्क एड्रेस है या फिर ब्रॉडकास्ट एड्रेस है? These are 9 questions, 9 IPs. Tell me, the very first IP is what? वैलिड आईपी. हाँ, चैट में डाल दीजिए, सबके आंसर चैट में डाल सकते हैं आप. I'll give you 2 minutes and then we'll discuss. So the first one is a class A address. Class A address means these 3 octets are for host. Are these 3 octets, all the bits of these 3 octets are 0? है क्या 0? नहीं है? No? So it's not a network address. All 24 bits of these host address is 1. क्या होस्ट पोर्शन के सभी 24 बिट्स 1 है? नहीं. No, sir. सारे 1 होते तो क्या आता? 10.25.255.255. So it's not a broadcast address as well. Valid IP. If it's not a network address and if it's not a broadcast address, what it is? It's a valid IP. Is it clear or not? Any Yes, sir. doubts? Got it. Got it. Okay. Number 2. So Shiva says broadcast. Chhatrapal says it's a broadcast. Again, it's valid. Dilip says valid. Mega says valid. Krishna says valid. Vishal says valid. Very good. It's a Valid. Okay. valid IP. Why? Because it's again a class A address. 0. All 3 octets. Are all 3 octets 0? No. All 3 octets 255? No. Then it's a valid IP. Number 3. 160.255.255.1. What is this? Valid IP. Again, it's a valid IP. Class B. Class B means these 2 octets are for host. Are these 2 octets 0? No. Are these 2 octets 255? No. Then it's a valid IP. Next, Broadcast. class B. Class B again, and these 2 octets are what? 255. It's a broadcast address. Okay. Any doubt in this, guys? If you have any doubt in any of these, just stop me and ask. Which class is this? 190.255.255. This is class B. Broadcast. Class B means these 2 octets Broadcast. for host. So both the host octets are 255. So it's again a broadcast address. Class C IP address 200, okay, and class C IP address, this is the host portion, the last octet, okay. Is this 0? No. Is this Valid. 255? No. So it's a valid IP. Again, class C. This is the host portion. Is this 0? No. Is this 255? Yes. So it's a broadcast address. 8. 1.1.1.1 class A. Class Valid A IP. means these 3. These 3 is what? Host address. Host Valid address. IP.
होस्ट पोर्शन का सारे बिट्स क्या है? 0 है? नहीं। 255 है? नहीं। So it is a valid IP. This one again, class C. C. Class C means this is the host Network. portion, and host portion is Person 0. is 0. It means it's a network address. Network. Hmm. क्लास ए का एड्रेस This is class B. ठीक है Yeah. हमारा ये आईपी काम करते स्पीडोमीटर की तरह काम करता है जैसे स्पीड बाइक का मीटर से 9 के बाद 0 पे 1 आ जाता है Hmm. इसमें भी यहाँ तक 200% हो गई तो ये 151 नहीं होता क्या? नहीं, नेटवर्क पोर्शन है ना, हाँ वो नहीं हिलेगा, वो जो है वो ही रहेगा, उसमें चेंज नहीं, वो सब नेटिंग बढ़ाएंगे तो आएगा. So now, are you guys comfortable if you see any IP address, you will be able to understand that it's a valid IP or it's a network address or a broadcast address. अभी आपको समझ में आ जाएगा ना आईपी एड्रेस देखते ही कि ये वैलिड आईपी है, मैं लगा सकता हूँ सिस्टम पे या नहीं. हेलो, यस सर. Yes. वेरी गुड. क्या मैं ये आईपी एड्रेस लगा सकता हूँ मेरे सिस्टम पे? नहीं सर, नहीं लगा सकते क्योंकि ये सर बी क्लास का एड्रेस है और दो नेटवर्क बिट लगा लगा. Network. नहीं सर. नहीं लगा सकते. ये वैलिड आईपी है, नेटवर्क है या ब्रॉडकास्ट? बताओ बताओ. कौन से क्लास का एड्रेस है ये? क्लास ए Class बी B. सी डी. Class क्लास B. बी. क्लास बी में ये दो ऑक्टेट है होस्ट के लिए. क्या ये दोनों 0 है? नहीं. क्या ये दोनों 255 है? नहीं. तो फिर ये वैलिड आईपी है, लगा सकते हैं. It's very simple. Just look at the host portion and check if all octets in host portion are 0, it's a network address. We can't use it. If all the octets in host portion are 255, it's a broadcast Then address. yes, Can't yes. use it. If both the conditions are not satisfied, then it's a valid IP. It's very simple. Okay? अभी समझ में आया कि नहीं? Yes or no? Yes. Yes, sir. Chetna, is it clear? Yes, sir. गुड. ओके, सो अभी आप आईपी एड्रेस पहचान के मतलब देख के पहचान लेंगे कि ये कौन से क्लास का आईपी है, इसमें होस्ट पोर्शन में कौन से ऑक्टेट है, नेटवर्क में कौन से है, ये आईपी एड्रेस कौन से नेटवर्क को बिलोंग करता है, और इस नेटवर्क का क्या ब्रॉडकास्ट एड्रेस है, ये सब आपको निकालना आना चाहिए. तो अभी मैं आपको फिर से एक सवाल पूछता हूँ. ये जो मैंने सेट ऑफ क्वेश्चंस इधर लिखे हैं, इन सभी वैलिड आईपीज के, ये जो वैलिड आईपीज है ना, ये सभी वैलिड आईपीज के मुझे नेटवर्क और ब्रॉडकास्ट एड्रेस निकाल के बताइए. फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं. वेरी फर्स्ट 10.1. आईपी, ये आईपी का नेटवर्क एड्रेस क्या है? दिस आईपी बिलोंग्स टू विच नेटवर्क? एक 10. क्लास. 10. टाइप कर दो योर आंसर्स. Not just 10, 10.0.0.0. Okay, sorry. That way, okay? Yeah, no worries. Right. So this is the network address. Yes. And what is the broadcast address of this network? Okay.
broadcast address. It's a class A address. Host portion में कितना bits है? कितना octets है? 3 octets. All 3 octets को 255 कर दोगे तो broadcast address निकल आएगा. As simple as that. So 10.255.255.255 is the broadcast address of this valid IP of this network 10.0.0.0. Is it clear? Second question. Then 100.0.255.255. So what is the network and broadcast address for this IP? Chatapal, Shiva, Dilip, and Chetna. Okay. Mega. Yes, sir, doing. Yeah. Take your time. Very good. So now you guys got it. Number 3, 160.255.255.1. Class B. So it's a class B address. 160.255.0.0 is the network address and 160.255.255.255 is the broadcast address. Very good. Okay, this one's number 6. 6. Class C. Dot. Dot. 250. 255. Very good. So Chatrapal, ये Yes, sir. क्लास 3 का एड्रेस है. क्लास Okay, 3 का okay. एड्रेस है. ये होस्ट पोर्शन में खाली एक ऑक्टेट है. तो 200.1.1.0 is network Okay, address okay. and 200.11255 is Yes. address. Very good. ये जो नेक्स्ट है नंबर 7, ये एक ब्रॉडकास्ट एड्रेस है. ये ब्रॉडकास्ट एड्रेस का नेटवर्क एड्रेस क्या होगा? नंबर 7. Seven.
Okay, fair enough. So now you all got what is required to go further. So this is what it is about the IP addresses and its classes. It's network, broadcast, valid IP address, this and that. अब देखो मैंने यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट में इधर लिखा है कि these addresses are either, ये जो भी एड्रेसेस है दे आर इधर प्राइवेट एड्रेस, वो या तो प्राइवेट एड्रेस हो सकते हैं या पब्लिक एड्रेस हो सकते हैं या रिजर्व्ड हो सकते हैं। ये कौन सी क्लासेस में से है? ये क्लास ए से सी क्लास की बात कर रहा हूं मैं। क्लास ए से सी के जो एड्रेसेस है वो एड्रेसेस या तो प्राइवेट हो सकते हैं या पब्लिक हो सकते हैं या रिजर्व्ड हो सकते हैं। तो बोले रिजर्व्ड एड्रेसेस तो थे ही ना, क्लास डी और ई वाले जो है ये रिजर्व्ड ही है। बोले नहीं, क्लास ए बी और सी में से भी कुछ रिजर्व्ड है, कुछ प्राइवेट एड्रेस है, कुछ पब्लिक। बोले ये प्राइवेट पब्लिक क्या होता है भाई? प्राइवेट पब्लिक मींस अगर प्राइवेट नेटवर्क पे आपको कोई होस्ट लगाना है तो उसको प्राइवेट आईपी लगा सकते हैं। पब्लिक नेटवर्क पे अगर किसी होस्ट को जाना है तो उसको पब्लिक आईपी चाहिए। अब पब्लिक नेटवर्क कौन सा होता है? पब्लिक नेटवर्क कौन सा है? इंटरनेट। भाई पब्लिक नेटवर्क इंटरनेट है ना, जहां पे कोई भी आ सकता है। भाई पब्लिक रोड है, बाहर रोड पे कोई भी आ सकता है, वैसे इंटरनेट पे भी कोई भी जा सकता है। और प्राइवेट नेटवर्क जो किसी ऑर्गेनाइजेशन का होता है ना, जो किसी कंपनी का खुद का नेटवर्क होता है। अभी जैसे सिस्को के नेटवर्क में मैं जाके बैठता हूँ, सिस्को के ऑफिस में तो कनेक्ट हो जाता हूँ, तो वहां के नेटवर्क पे आपको एंट्री नहीं होगी क्योंकि आप सिस्को के एम्प्लॉय नहीं हो। वहां के नेटवर्क से आप कनेक्ट नहीं हो सकते, वो सिस्को का प्राइवेट नेटवर्क है। लेकिन इंटरनेट इज अ पब्लिक नेटवर्क। पर्सनल कैसे? इंटरनेट पे पर्सनल तो कुछ भी नहीं है ना। आप गूगल खोलते हो वो भी पब्लिक है, आप भी खोल सकते हो, मैं भी खोल सकता हूँ। अपन रिचार्ज करके अपना आईपी यूज करते हो तो पर्सनल होता है। नहीं, इंटरनेट ही पब्लिक नेटवर्क है। इंटरनेट जो है वो एक प्लेटफॉर्म है जिसपे आप भी आ गए, दूसरे भी। पर्सनल तो वो हुआ कि सिर्फ इंटरनेट पे एक ही बंदा आके काम कर सकता, वो है विशाल। वो उसका इंटरनेट जो है वो तुम्हारा पर्सनल नेटवर्क हो गया, समझ रहे हो? पर्सनल नेटवर्क का मतलब जहां सिर्फ मेरा ही अधिकार है। भाई ये लैपटॉप मेरा पर्सनल लैपटॉप है, ये मोबाइल मेरा पर्सनल मोबाइल है, इस पे सिर्फ मैं ही काम कर सकता हूँ, आपको इस पे अधिकार ही नहीं है, येलो लॉक हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि पर्सनल नेटवर्क वो जो सिर्फ आप ही जिस पे जाते हो, प्राइवेट नेटवर्क वो जिसमें एक कंपनी के या एक ऑर्गेनाइजेशन के लोग ही खाली एंट्री लेने के लिए वैलिड है। और पब्लिक नेटवर्क वो जहां पर एनीबडी कैन कम एंड वर्क सो और एक्सप्लोर व्हाटएवर। सो इंटरनेट इज अ पब्लिक नेटवर्क। सो इंटरनेट पे जाने के लिए आपको क्या चाहिए? पब्लिक आईपी। इंटरनेट पे जाने के लिए आपको क्या चाहिए भाई? पब्लिक आईपी। और पब्लिक आईपी के लिए यू हैव टू पे। पब्लिक आईपी फ्री नहीं मिलते हैं, पब्लिक आईपी के लिए आपको पैसा देना पड़ता है। और आप किसको पैसा देते हो इसके लिए? पे टू ISP सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो इंटरनेट का जो आप पैसा देते हो, वो पैसे में आईपी एड्रेस जो वो आपको एक दे रहा है पब्लिक आईपी, वो भी शामिल है। तो किसी ने कहा अच्छा जी पे करना पड़ता, प्राइवेट के लिए पे नहीं करना पड़ता। बोले नहीं नहीं, प्राइवेट एड्रेसेस आर फ्री, यू कैन यूज देम इन योर प्राइवेट नेटवर्क। जैसे मेरे यहाँ पर मेरे ऑफिस में 20 लोग काम करते हैं, वो 20 लोगों के लिए मैंने एक लैन नेटवर्क बना के उनको प्राइवेट आईपी दे दिया। अभी वो आपस में बातचीत कर सकते हैं। But if these 20 people want to go to internet, they cannot. Using a private IP address, you cannot go to the internet. Internet pe private IPs are not allowed. Only public IP if you have, you can go to internet and use. Right? So the important thing here is that which are the private addresses and which are the public addresses. In class A, B, and C, which are the private addresses, which are public addresses? So let me tell you. 10.0.0.0 प्राइवेट एड्रेसेस जो है वो क्लास ए, बी और सी तीनों में से डिफाइन किए हैं। यस सर।
तीनों में डिफाइन किए हैं, क्लास ए, बी एंड सी। तो ये जो प्राइवेट आईपी एड्रेसेस है, क्लास ए में से 10.0.0.0 से लेके 10.255.255. 10.255.255. This is the range from class A given for private IPs. Class B 172.16.0.0. to 31. 31.255. class C 192.168.0.0. This is the range of private IP addresses. Guys, this is the range for private IP addresses from class A, B and C. इनके अलावा अगर कोई भी नेटवर्क है तो वो पब्लिक नेटवर्क है। आप अगर एक आईपी देते हो 100.0.255.255, ये एक पब्लिक आईपी है। क्या आप इसको अपने प्राइवेट नेटवर्क में यूज कर सकते हो? No, sir. पब्लिक आईपी को प्राइवेट नेटवर्क में यूज कर सकते हैं, लेकिन प्राइवेट आईपी को पब्लिक नेटवर्क में यूज नहीं कर सकते। ध्यान रखो ये बात। आप पब्लिक आईपी जितने भी हैं उनको प्राइवेट में यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप Okay. प्राइवेट आईपी लेकर पब्लिक नेटवर्क पे नहीं जा सकते। ठीक है जी। तो जनरली आप देखोगे जो लैन नेटवर्क होता है ना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, तो उसमें अगर बड़ा नेटवर्क है यानी जिसमें होस्ट बहुत सारे हैं तो वो क्लास ए का ये आईपी रेंज यूज कर लेगा। अगर मीडियम लेवल का है तो क्लास बी का ये नेटवर्क रेंज यूज कर लेगा। क्लास सी का यूज करेगा जब उसके पास में कम होस्ट है, कम यूजर्स है। ठीक है जी। क्लास ए, बी, सी प्राइवेट रेंज। अब देखिए ये जो प्राइवेट एड्रेसेस है ये फ्री हैं, इनके लिए कोई पैसा नहीं देना। आप अपने प्राइवेट आईपी, अब मेरे लैपटॉप का आईपी एड्रेस क्या है इस समय? व्हाट इज आईपी एड्रेस ऑफ माय नेटवर्क, माय लैपटॉप? तो देखो मेरे लैपटॉप का आईपी एड्रेस वाईफाई वाला चेक करो, यही है वायरलेस लैन अडेप्टर। मेरा आईपी क्या है, किधर है IPv4 एड्रेस? 192.168.45.85. This is my IP address. Okay, it's a public or a private IP? Private. It's a public or private, guys? Private. Okay, प्राइवेट वाला ही रेंज में आ रहा है ना, 192.168.250 से लेके 255, तो ये 45 है, इसका मतलब इट्स अ प्राइवेट आईपी। नाउ यूजिंग प्राइवेट आईपी हाउ आई एम एबल टू कनेक्ट टू द इंटरनेट? मैं इंटरनेट पे आप लोगों से अभी ये मीटिंग कर रहा हूं, तो इसके लिए तो पब्लिक आईपी चाहिए ना, वो किधर है? ये तो प्राइवेट आईपी है। सर ब्राउजर पर जाकर व्हाट इज माय आईपी जो वो होता है वो शो कर जाएगा। वेरी गुड। देखो ये जो आईपी है प्राइवेट आईपी, ये मेरे इस लैपटॉप का आईपी एड्रेस है, लेकिन जब मेरे यहाँ से ट्रैफिक जो है वो गेटवे पे जाता है, ये मेरा गेटवे है जो कि ब्रॉडबैंड वाला राउटर है 210, इस पे जाता है, तो ये मुझे एक पब्लिक आईपी जो है वो असाइन कर देता है। मतलब मैं लेकर ये वाला आईपी लेकर रिक्वेस्ट लेकर जाऊंगा कि मुझे गूगल खोलना है, किसके पास जाऊंगा? गेटवे के पास। तो गेटवे कहेगा अरे मुन्ना ये वाला आईपी लेके नहीं जा पाओगे, लो मैं आपको एक दूसरा आईपी दे देता हूँ, एक मास्क लगा देता हूँ आप पे। भाई इस पार्टी में आपको एंट्री नहीं मिलेगी तब तक जब तक कि आपकी शक्ल जो है वो टॉम क्रूज जैसी नहीं है। तो भाई मैं तो टॉम क्रूज नहीं हूँ, पार्टी में घुसना है तो मैं टॉम क्रूज का मास्क लगा लूंगा और घुस जाऊंगा। सिमिलरली ये जो है इसको आईपी को इंटरनेट पे एंट्री नहीं है, पर सर्विस प्रोवाइडर जो है वो क्या करता है, इस आईपी पे एक पब्लिक आईपी आपको दे देता है और उसके थ्रू आप पहुंच जाते हो इंटरनेट पे। तो मुझे जो सर्विस प्रोवाइडर ने पब्लिक आईपी दिया वो कौन सा है, किधर पता लगेगा? तो जैसा कि अभी बताया कि भाई आप यहाँ पर व्हाट इज माय आईपी, इस पे जाइए
और जैसे ही आप इस पे गए वेबसाइट पे, ये आपको बता देगा कि माई पब्लिक आईपी वर्जन IPv4 एड्रेस इज दिस इज प्राइवेट और पब्लिक, दिस इज पब्लिक पब्लिक public IP, okay? It's a public IP. 172 का रेंज जो है वो कहीं भी नहीं है ना प्राइवेट में। क्लास ए है, क्लास ए में सिर्फ 10 नेटवर्क इज लाइक प्राइवेट आईपी, द रेस्ट ऑफ देम आर पब्लिक। सो दिस इज माय पब्लिक आईपी जो मुझे सर्विस प्रोवाइडर ने दिया है। माय आईपी लोकेशन इज टोक्यो, जापान, ISP, Cisco systems, this, that, whatever. So it gives you all the details. So this is my public IP. Okay. So private IP है मेरे पास इधर लगा हुआ, लेकिन मैं एक्चुअल में इंटरनेट पे ये यूज करके नहीं जा रहा। सर्विस प्रोवाइडर मुझे एक दूसरा पब्लिक IP दे देता है ऑन टॉप ऑफ दिस, which I can use to go to the internet, and for that only service provider charges me. और सर्विस प्रोवाइडर को कौन चार्ज करता है? आयना, जिसने सर्विस प्रोवाइडर को पब्लिक IP असाइन किया है। सर्विस प्रोवाइडर को आईपी किधर से मिले भाई? पब्लिक आईपी। वो आयना के पास गए, बोले हमें ना सर्विस देनी है इंटरनेट वाली यूजर्स को, तो हमें पब्लिक आईपी दे दो। तो आयना ने उनको एक आईपी एड्रेस रेंज दे दिया कि ये लो भाई अपने कस्टमर्स को दे देना इनमें से। तो आयना ने पैसा लिया एयरटेल से, और एयरटेल ने उससे पैसा लिया इंटरनेट के लिए। इट्स लाइक दैट। इज इट क्लियर? यस और नो? Yes, sir. वेरी गुड। नाउ ये तो हुए प्राइवेट पब्लिक। अब आते रिजर्व पे। रिजर्व्ड आईपी एड्रेस कौन से होते भाई? ये 0.0.0.0, दिस इज रिजर्व। आपका कोई भी नेटवर्क जो है उसका पहला ऑक्टेट 0 नहीं हो सकता। पहला ऑक्टेट 0 हो ही नहीं सकता। आप इधर आईपी लगाइए, इस पे गए प्रॉपर्टीज, IPv4 प्रॉपर्टीज, आप इस पे एक आईपी एड्रेस लगाइए 0. जैसे ही 0 बोला, ये क्या क्या करता है? 0 इज नॉट अ वैलिड एंट्री, प्लीज स्पेसिफाई अ वैल्यू बिटवीन 1 and 2 to 3। 0 नहीं दे सकते, फर्स्ट ऑक्टेट कैन नॉट बी 0। ओके, सो दिस इज रिजर्व। सेकंड रिजर्व्ड एड्रेस इज व्हाट? 127.0.0.0.02, 127.255.255.255. This is loop back addresses. yes, this is for loop back. Okay, ये पूरा का पूरा रेंज ही रिजर्व्ड है। दिस होल रेंज इज रिजर्व्ड। आप इधर जाएंगे और यहाँ पर आईपी देंगे 127, तो ये कहेगा आईपी एड्रेस स्टार्टिंग विद 127 आर नॉट वैलिड बिकॉज दे आर रिजर्व्ड फॉर लूप बैक एड्रेसेस, प्लीज स्पेसिफाई सम अदर वैलिड वैल्यू बिटवीन 1 to 2 to 3। ये लूप बैक एड्रेस किस लिए है? लूप बैक इज लाइक फॉर सेल्फ, फॉर इट्स काइंड ऑफ एक डिवाइस जो है, वो डिवाइस को अगर आप चेक करना चाहते हो, जैसे ये मेरा डिवाइस है, इसका आईपी एड्रेस क्या था? 192.168.45, यही है। अब मैं इस डिवाइस का ये जो मेरा आईपी है, इसको अगर मैं करता हूं पिंग एक कमांड है जिससे कि मैं एक इको मैसेज भेजता हूं और उसका रिप्लाई देता है वो आईपी जिसको पिंग करता हूं। जैसे आप पहाड़ पे जाके वैली में आप चिल्लाते हैं ना, हेलो हेलो हेलो, तो उसका एको का रिप्लाई आता है ना, मतलब एको आता है, दैट मींस मैंने कुछ बोल इज दैट। जिस आईपी को पिंग करो उसका रिप्लाई आना चाहिए अगर वो नेटवर्क में आईपी एड्रेस अप है तो मैंने इसको पिंग किया, एंटर मारा, तो देखो मेरे पास में रिप्लाई आया। रिप्लाई फ्रॉम दिस है ना, 4 पैकेट सेंड किए, उसके 4 रिप्लाई भी आए, कोई लॉस नहीं हुआ पैकेट, 100% सक्सेसफुल ये आईपी एड्रेस नेटवर्क में है भैया, इट्स डन, है ना। अगर मैं पिंग करूं 127.0.0.1 ये आईपी को अगर पिंग करूं तो भी देखो रिप्लाई आ रहा है, रिप्लाई इज कमिंग, एंड हु इज रिप्लाइंग? माय ओन कंप्यूटर, माय ओन लैपटॉप। 127 इज नॉट असाइन्ड टू समवन एल्स, ये आपके खुद के सिस्टम का इंटरनल आईपी है, सिर्फ ये चेक करने के लिए कि आपके इस कंप्यूटर पे टीसीपी आईपी स्टैक विंडोज के साथ में सही से इंस्टॉल हुआ है या नहीं।
अगर आप ये देखना चाहते हो भाई, कई बार क्या होता है कि कंप्यूटर जो है ना वो नेटवर्क पे नहीं कनेक्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो पता है क्या करते हैं हम, करते हैं कि यार ये टीसीपी आईपी है ना, ये सर्विस को ऑफ करके ऑन करो, फिर भी नहीं हो रहा है तो अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करो, हाँ अब हो गया। क्यों? क्योंकि विंडोज जब इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ में टीसीपी आईपी सर्विस भी इंस्टॉल होती है, और कई बार अगर उससे रिलेटेड कोई फाइल करप्ट हो गई तो आपके उस सिस्टम पे टीसीपी आईपी काम ही नहीं करेगा, तो आईपी एड्रेसिंग जो है वो होने के बावजूद भी उससे रिप्लाई नहीं आएंगे किसी से। तो आपको अगर चेक करना है कि टीसीपी आईपी सर्विस सही से इंस्टॉल हुई है या नहीं, उसके लिए आप अपना लूप बैक एड्रेस जो है उसको पिंग करा लो। अगर उससे रिप्लाई आ रहा है इसका मतलब टीसीपी आईपी स्टैक ठीक है, कुछ और प्रॉब्लम है। ठीक है जी। तो ये 127.0.0.1 ही नहीं, चाहे आप ये 2 कर दो, चाहे आप इसको 3 कर दो, 4 कर दो, चाहे आप इसको 255 255 255 कर दो, ये तो ब्रॉडकास्ट हो गया 254 तक। ठीक है, तो ये देखो सबसे रिप्लाई आ रहा है, ये पूरा का पूरा जो रेंज है ना, दिस होल रेंज फ्रॉम 127.0.0.0 टू 255, इसमें से ये इसको 1 कर देंगे और इसको कर देंगे 254। बट कहने का मतलब है कि वो पहला और आखिरी तो यूज करते नहीं है ना, तो 1 से लेकर 255 है पूरा का पूरा रेंज ही लूप बैक के लिए रिजर्व, बट इन लूप बैक रेंज ऑल्सो द फर्स्ट एंड लास्ट आर नॉट वैलिड आईपी। In public, private and reserved IP addresses? Any doubt, any questions? अभी आपको अगर एक आईपी एड्रेस दिखाई देगा तो आप उसको क्लास कौन सा है पहचान लोगे, कौन सा नेटवर्क और कौन सा ब्रॉडकास्ट एड्रेस है उस आईपी का पहचान लोगे, ये आईपी दिया जा सकता है कि नहीं, वैलिड आईपी है या नेटवर्क या ब्रॉडकास्ट, ये आप पहचान लोगे। आप ये पहचान लोगे कि भाई ये आईपी एड्रेस जो है ये प्राइवेट है या पब्लिक है या रिजर्व्ड है। आप ये भी पहचान लोगे कि भाई ये आईपी एड्रेस जो है, ये आईपी एड्रेस जो है वो क्लास डी या ई को क्लास डी या ई का ऑप्शन है, मतलब वही क्लासेस में आइडेंटिफाई करना, तो ये सब आप अब पहचान लोगे आई गेस, आई होप। ओके, सो आई थिंक दैट्स इट इन आईपी एड्रेसिंग। आईपी एड्रेसिंग में सिर्फ इतना ही है। आईपी जो है वो अकेला आईपी एड्रेस के साथ में एक और ऑप्शन होता है सबनेट मास्क, यू नो। तो अब हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक है वो सबनेट मास्क है कि सबनेट मास्क क्या होता है। तो देखिए सबनेट मास्क जो है उसकी डेफिनेशन क्या है। व्हाट इज सबनेट मास्क? जितने भी सर नेटवर्क बिट ऑन होंगे उनको तो 255 कर देते हैं, बाकी 0 कर देते हैं होस्ट बिट को। ये इसकी डेफिनेशन है कि सबनेट मास्क इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई दैट द गिवन आईपी बिलोंग्स टू विच नेटवर्क और सबनेट। जो आईपी एड्रेस लिखा गया दिया गया आपकी नजरों के सामने, वो आईपी एड्रेस कौन से नेटवर्क या कौन से सबनेट को बिलोंग करता है, ये सबनेट मास्क से पहचाना जाता है। तो अब सबनेट मास्क की जो कहानी है ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। आज सिर्फ मैं डेफिनेशन दिया हूं, टॉपिक कर लूंगा ये, ठीक है। आज सिर्फ आईपी एड्रेसिंग था, तो सबनेट मास्क को इंट्रोड्यूस किया हूं डेफिनेशन को। आई होप आप लोग यू विल गो बैक एंड यू विल चेक एंड देन यू विल ट्राई टू फाइंड दैट व्हाट सबनेट मास्क इज। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है अभी ये टॉपिक सबनेट मास्क आने की वजह से। सो let's hope you will get it as easy as possible. I'll try to explain it, and this is the most important part where we are stepping in now, from interview perspective as well as from any possible perspective you can think of। चाहे आप काम करेंगे अपने कंपनी में, चाहे आप कस्टमर से बात करेंगे, चाहे आप एग्जाम देंगे, चाहे आप इंटरव्यू देंगे, हर चीज के
लिहाज से this is one of the most important topics. So we'll start it tomorrow. आज के लिए इतना ही है. Any questions or any doubts before we close the session? No? Okay, sir. then I'll leave you with this and see you tomorrow again, same time. Thank you so much for joining in, guys. Have a good day ahead. Thank you, sir.